Today we'll start with physical properties of benzene. We'll start with physical properties of benzene. The first one is benzene is colorless liquid. Colorless means like water. Benzene is colorless liquid. Its boiling point is the benzene boil at 353 Kelvin and melting point is 278.5 Kelvin. Okay, so benzene boiled at, because अगर liquid रहेगा तो boil कहाँ पे होगा 353 Kelvin पे, और अगर solid रहेगा तो melt कहाँ पे होगा at 278.5 Kelvin. It is insoluble in water, मतलब water में dissolve नहीं होगा. It is insoluble in water, मतलब it will not dissolve in water, but it forms the upper layer when mixed with the water. अगर water में mix करोगे तो it will form the upper layer. मतलब it is insoluble in water, but it forms the upper layer when mixed with the water. It is soluble in alcohol, ether, and chloroform. It is soluble in alcohol, ether, and chloroform. And benzene vapors are highly toxic. Benzene vapors are highly toxic, which on inhalation leads to unconsciousness. मतलब अगर किसी ने बेंजीन वेपर्स को अगर इनहेल कर दिया, बेंजीन वेपर्स को अगर इनहेल कर दिया, तो that will cause unconsciousness. That will cause unconsciousness. So benzene vapors are highly toxic, which on inhalation leads to what? Unconsciousness. तो ये हमारी physical properties of benzene थे. What are physical properties? Benzene is a colorless liquid. Boiling point is 353 Kelvin and melting point is 278.5 Kelvin. Insoluble in water but forms the upper layer when mixed with the water. It is soluble in alcohol, ether, and chloroform. And benzene vapors are highly toxic, which on inhalation leads to unconsciousness. Correct? Now we'll start with, after physical property, we'll start with the chemical properties of benzene. The chemical properties of benzene are addition reaction. The first one is addition reaction. And in addition reaction, the A, that is addition of chlorine. Addition of chlorine. What is the reaction? Benzene, when treated with the chlorine in the presence of bright sunlight or in the presence of ultraviolet light, adds up 3 molecules of the chlorine to give benzene hexachloride. I'll write here reaction benzene. देखो benzene का formula, see normally benzene is what? Benzene with alternate double bond, and we know that the benzene is CH6. Every corner there is one hydrogen atom. आप ऐसे लिख सकते हो. This is benzene. Benzene when treated with the chlorine in the presence of bright sunlight or in the presence of ultraviolet light, benzene when treated with the chlorine in the presence of bright sunlight or ultraviolet light adds up 3 molecules of chlorine. कितने molecule add होंगे? 3 chlorine to give. कैसे होगा? 3 2 the 6. 3 2 the 6. So 6 मतलब हर एक जगह एक एक ऐड होगा क्लोरीन एटम. ये हमारा बेंजीन हेक्साक्लोराइड with alternate double bond. नहीं सॉरी, ये बॉन्ड चेंज हो जाएगा. बेंजीन ऑलरेडी यहाँ पे सर जगह क्या था? H, और H के साथ क्या अटैच होगा? Cl. HCl. 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 मतलब ऑलरेडी यहाँ पे क्या था? हर एक कॉर्नर पे एक एक हाइड्रोजन आइटम था.
लेकिन यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे क्लोरीन ऐड हुआ, यहाँ पे क्लोरीन ऐड हुआ, यहाँ पे एक क्लोरीन एटम ऐड हुआ, यहाँ पे एक Cl एटम ऐड हुआ, डबल बॉन्ड के दोनों साइड में। तो इसलिए हम यहाँ पे कितने क्लोरीन मिले, 1 2 3 4 5 6, तो इसलिए 3 to the 6। एंड दिस कंपाउंड, यहाँ पे जो हमें कंपाउंड मिला हुआ है उसका अगर हम लोग नाम लिखेंगे तो नाम क्या आएगा इसका, बेंजीन हेक्सा बेंजीन हेक्साक्लोराइड, बेंजीन हेक्साक्लोराइड शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख सकते हो, BHC। बेंजीन हेक्साक्लोराइड शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख सकते हो, BHC। तो क्या था, बेंजीन में क्या ऐड करोगे, क्लोरीन ऐड करोगे, बेंजीन में क्लोरीन ऐड करोगे इन द प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रा वायलेट लाइट, और हमें क्या मिलेगा, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। रिएक्शन वैसे भी लिख सकते हो, और मतलब मैंने क्या किया, यहाँ पे क्लोरीन ऐड Cl ऐड कर दिया, यहाँ पे Cl ऐड कर दिया, तो 1Cl2। यहाँ पे एक Cl ऐड कर दिया, यहाँ पे एक Cl ऐड कर दिया, तो Cl2 हुआ। यहाँ पे एक Cl ऐड कर दिया, यहाँ पे एक Cl ऐड कर दिया, Cl2 हुआ। ऐसे कितने Cl2 ऐड कर दिए, 3Cl2, तो 3 क्लोरीन, 3 क्लोरीन। वैसे रिएक्शन ऐसे भी लिख सकते हो, बेंजीन विद क्लोरीन, और हमें क्या मिल रहा है, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, HCl 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 and H, so benzene hexa मतलब 6 chloride are there, same reaction अब ऐसे भी लिख सकते हो, benzene with chlorine in the presence of ultraviolet light, benzene in the presence of benzene with chlorine in the presence of ultraviolet light। और देखो यहाँ पे ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड था, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड होगा, और यहाँ पे एक एक जगह क्या मिलेगा, Cl। H मैंने दिखा, H दिखाना कंपल्सरी नहीं है, यहाँ पे मैंने H नहीं दिखाया, तो यहाँ पे क्या आएगा, Cl, लेकिन H ऑलरेडी है। This is called as a benzene hexachloride, HCl 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 HCl, benzene hexachloride, ये हमारा प्रोडक्ट है। एडिशन रिएक्शन फर्स्ट, एडिशन ऑफ क्लोरीन हुआ। नाउ विल गो फॉर द नेक्स्ट वन, B। Addition of hydrogen, addition of hydrogen. What is addition of hydrogen here? When mixture of benzene and hydrogen gas passed over heated catalyst nickel at 453 Kelvin to 473 Kelvin, cyclohexane is formed. देखो, what is the reaction here? Benzene and hydrogen are passed over heated catalyst nickel. Benzene
ये हमारा बेंजीन विथ ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड, benzene and hydrogen gas, benzene and hydrogen gas. H2 means what? Hydrogen gas. Benzene formula is what? C6H6. Benzene and hydrogen gas passed over nickel catalyst at 453 to 473 Kelvin. Benzene and hydrogen gas passed over heated catalyst 453 to 473 Kelvin. Yes, here यहाँ पे एक H ऐड होगा, 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 तो H2 H2 H2, तो हमने H2 एडिंग 3 और ये हमें मिलेगा साइक्लोहेक्सेन हमारा साइक्लोहेक्सेन आएगा डायरेक्टली, मतलब अगर आपको ऐसा और लिखना है, और अगर ये मेन रिएक्शन लिखोगे तो भी चलेगा, आई एम जस्ट शोइंग द अदर, ये और ऐसा आप लिख सकते हो, लेकिन अगर आपको ऐसा लिखना है तो ये रहेगा बेंजीन with alternate double bond and already one hydrogen is there. Three hydrogen, nickel catalyst, 453 to 473 Kelvin, 453 to 473 Kelvin. Three hydrogen तो क्या होगा, एक हाइड्रोजन देखो H2, एक H यहाँ पे चला जाएगा, H एक यहाँ चल, तो सबसे कैसे मिलेगा, देखो एडिशन अक्रॉस डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो एक हाइड्रोजन यहाँ पे चला जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पे चला जाएगा, तो ऑलरेडी उनके पास 11H है, और एक H आ जाएगा, ऑलरेडी 11H था और एक H आ, यहाँ पे देखो ऑलरेडी 11H है और एक H2 ऐड करो, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, H H H H, ऑलरेडी यहाँ पे H H है, लेकिन अगर हाइड्रोजन ऐड करोगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा, H H, एंड दिस इज कॉल्ड एज साइक्लोहेक्सेन। लेकिन आप सिंपल इस फॉर्म में लिख दो, बेंजीन रिएक्ट विद द हाइड्रोजन in the presence of nickel catalyst at 453 to 473 Kelvin, cyclohexane is formed. cyclohexane का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12। देखो यहाँ पे बेंजीन क्या था, C6H6 था, और साइक्लोहेक्सेन क्या आ रहा है, C6H12। काउंट करोगे तो यहाँ पे देखो 12 हाइड्रोजन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 hydrogen are there. C6H2 cyclohexane. What is the reaction when benzene and hydrogen mixed or in the presence of nickel catalyst at 453 to 473 cyclohexane is formed. देखो दोनों सेम है, यहाँ पे ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड है तो बेंजीन, और यहाँ पे कुछ भी बॉन्ड नहीं है तो ये क्या बनेगा, साइक्लोहेक्सेन। ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड है तो बेंजीन, और यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो क्या बनेगा, साइक्लोहेक्सेन। साइक्लो क्यों, रिंग है इसलिए साइक्लो, 6 कॉर्नर है, 1 2 3 4 5 6 6 मतलब हेक्स, और कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है इसलिए क्या आएगा, एक साइक्लोहेक्सेन। तो इस कंपाउंड का नाम क्या आएगा, साइक्लोहेक्सेन। तो हमने दो एडिशन रिएक्शन देखे। पहला वाला एडिशन रिएक्शन क्या था, पहला वाला था एडिशन ऑफ क्लोरीन, और एडिशन ऑफ क्लोरीन हमें क्या दे रहा था, बेंजीन हेक्साक्लोराइड दे रहा था। और दूसरा क्या किया हम लोगों ने, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या दे रहा है हमें, साइक्लोहेक्सेन दे रहा है। तो ये हमारे एडिशन रिएक्शन हो गए। नाउ विल गो फॉर द नेक्स्ट हेडिंग।
Next we are going for what? Substitution reaction. Substitution. अभी एडिशन में क्या था? देखो एडिशन में क्या हो रहा था, यहाँ पे अगर हमारा डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड में एक Cl चला जाएगा लेफ्ट साइड में, एक Cl चला जाएगा राइट साइड। यहाँ पे भी डबल बॉन्ड है, एक Cl चला जाएगा लेफ्ट साइड में, एक Cl चला जाएगा राइट साइड में। यहाँ पे भी डबल बॉन्ड है, एक Cl चला जाएगा लेफ्ट साइड में, एक Cl चला जाएगा राइट साइड। इसलिए इनको क्या बोलना है? एडिशन रिएक्शन। एडिशन में क्या हो रहा था? डबल बॉन्ड चेंजेस टू सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड चेंजेस टू सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड चेंजेस टू सिंगल बॉन्ड, एडिशन रिएक्शन। यहाँ पे देखो डबल बॉन्ड था, सिंगल हुआ, डबल बॉन्ड था, सिंगल हुआ, डबल बॉन्ड था बेंजीन में, और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड। एडिशन क्या हो रहा है? अक्रॉस द डबल बॉन्ड हो रहा है, एडिशन अक्रॉस द डबल बॉन्ड। ओके, ये यहाँ पे एडिशन। द एडिशन कैसे होता है? अक्रॉस द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। एडिशन रिएक्शन कैसे होता है? अक्रॉस द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। अभी हम लोग देखेंगे कौन सा रिएक्शन? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और सब्स्टिट्यूशन में पहला वाला रिएक्शन है दैट इज हैलोजेनेशन। सब्स्टिट्यूशन में सबसे पहले वाला रिएक्शन कौन सा आएगा? हैलोजन। व्हाट इज हैलोजेनेशन? इन दिस रिएक्शन hydrogen atom of benzene ring is replaced by halogen atom। यहाँ पे क्या होगा? देखो इन दिस रिएक्शन में है, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है। तो क्या सब्स्टिट्यूट करना है इन दिस रिएक्शन? हाइड्रोजन एटम ऑफ द बेंजीन रिंग इज रिप्लेस्ड बाय हैलोजन एटम। द हाइड्रोजन एटम को रिमूव करना है, और हाइड्रोजन की जगह क्या लिखना है? हैलोजन एटम। सो हाइड्रोजन एटम ऑफ द बेंजीन रिंग is replaced by halogen atom, and in that the first one is chlorination. What is chlorination here? Chlorine reacts with benzene in dark in the presence of ferric chloride or anhydrous aluminium chloride or red phosphorus as the catalyst to give क्लोरोबेंजीन। देखो यहाँ पे क्या होगा? डोरीन रिएक्ट विद बेंजीन। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा बेंजीन hexagonal ring with alternate double bond benzene react with chlorine, but react with the chlorine in dark in the presence of
in dark in presence of what? Either you can use the ferric chloride or you can use the anhydrous aluminum chloride or you can use the red phosphorus as a catalyst. So chlorine react with the benzene in dark in the presence of ferric chloride और anhydrous aluminum chloride और रेड फॉस्फोरस. तो आयन यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ. और यहाँ पे कौन सा रिएक्शन है? एडिशन है, सब्स्टिट्यूशन है. सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होगा? यहाँ से एक हाइड्रोजन निकाल दो, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकाल दो. सब्स्टिट्यूशन हमारा हेडिंग ही क्या है? सब्स्टिट्यूट करना. सब्स्टिट्यूट मतलब यहाँ से एक हाइड्रोजन निकाल दो. हमें मालूम है हर एक कॉर्नर में क्या होगा? हाइड्रोजन. एक हाइड्रोजन यहाँ से निकाल दो और हाइड्रोजन की जगह क्या लिख दो? क्लोरीन. तो ये बनेगा हमारा क्लोरो बेंजीन. देखो ऐसा आई राइट और ऐसा रिएक्शन अल्टरनेट डबल बॉन्ड और यहाँ पे H H और क्या ऐड कर रहे हो? क्लोरीन Fe इन डार्क. अभी क्या होगा? यहाँ से एक H निकाल दो और एक H की जगह कौन चला जाएगा? 1Cl. बाकी रेस्ट पार्ट पूरा सेम रहेगा. यहाँ पे H H H H और 1H की जगह क्या लिखा? क्लोरीन लिखा. लेकिन बाकी के H नहीं लिखोगे तो भी चलेगा. 1H की जगह क्या लिखा? क्लोरीन निकाला प्लस यहाँ से रिमूव हुआ H और यहाँ पे और एक Cl है. H and Cl combined together to give what? HCl. देखो यहाँ पे क्या हो रहा है? Cl2 यहाँ पे जा रहा है. Cl2 से एक Cl जा रहा है. Cl2 में से एक Cl यहाँ पे जा रहा है. तो जब Cl यहाँ पे चला जाएगा, जब Cl यहाँ पे चला जाएगा तो क्या मिलेगा? Cl और H यहाँ से आके दूसरे Cl2 है. Cl2 मतलब Cl सिंगल बॉन्ड Cl. तो एक Cl यहाँ पे जा रहा है और H और दूसरा Cl का फॉर्म करेंगे? HCl फॉर्म करेंगे. तो यहाँ पे आएगा H. तो आप फर्स्ट वाला रिएक्शन लिख दो या सेकेंड वाला लिख दो. दोनों में से कोई नहीं. दोनों लिख के बताया. और फर्स्ट और सेकेंड. तो बेंजीन रिएक्ट विद द क्लोरीन in the dark in the presence of Fe as a catalyst. और हमें क्या मिल रहा है? क्लोरोबेंजीन मिल रहा है. क्या मिल रहा है? क्लोरोबेंजीन मिल रहा है. सो बेंजीन रिएक्ट विद द क्लोरीन in the presence of Fe in the dark to gives you what? क्लोरोबेंजीन. ओके, ये हमारा फर्स्ट सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुआ. क्लोरीनेशन था. ये कौन सा रिएक्शन था? क्लोरीनेशन. क्लोरीन ऐड कर दिया इसलिए क्लोरीनेशन था. अभी ऐड करेंगे ब्रोमिनेशन. Bromination. Bromination is similar to chlorination. Bromination is similar to chlorination. Is similar to chlorination. Correct? यहाँ पे क्या आ जाएगा? बेंजीन alternate double bond. हर एक कॉर्नर में क्या रहेगा? H H H H H नहीं, लेकिन H नहीं लिखते. बेंजीन react with bromine in the presence of FeBr3 in the presence of FeBr3. अब यहाँ पे कौन सा रिएक्शन? सब्स्टिट्यूशन. कौन सा रिएक्शन है? सब्स्टिट्यूशन है. तो क्या होगा? Br यहाँ पे चला जाएगा. Br यहाँ पे चला जाएगा. Br यहाँ पे चला जाएगा. यहाँ पे एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा. तो यहाँ पे बेंजीन रिंग
विद ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड एज इट इज, और यहाँ पे एक H की जगह क्या आ जाएगा, Br आ जाएगा। H की जगह Br आएगा तो क्या बनेगा, ब्रोमो बेंजीन, ब्रोमो बेंजीन। और यहाँ से जो H बाहर निकलेगा दूसरे Br2 का मतलब Br सिंगल बॉन्ड Br2 का मतलब Br सिंगल बॉन्ड Br, एक Br यहाँ पे चला जाएगा तो यहाँ से क्या बाहर निकलेगा H, और H दूसरे Br के साथ कंबाइन होगा तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, H। ये हमारा सब्स्टिट्यूशन है। सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, यहाँ का हाइड्रोजन रिमूव करना है, और हाइड्रोजन को रिमूव होगा तो उसकी जगह कौन चला जाएगा, Br चला जाएगा। तो हाइड्रोजन की जगह Br चला जाएगा, और जो हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हुआ है वो दूसरे Br के साथ कंबाइन होके क्या फॉर्म करेगा, HBr फॉर्म करेगा। ये हमारा प्रोडक्ट क्या मिलेगा, ब्रोमीन Br, so bromo and benzene ring attached to the bromobenzene. Br attached to benzene ring are called as the bromobenzene. Br attached to benzene ring are called as the bromobenzene. Okay. अगर आपको और लिखना है, मतलब जैसे आप लिख दो, लेकिन अगर आपको और लिखना है तो बेंजीन रिंग विद ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड, यहाँ पे क्या रहेगा, H H H, ऑलवेज सिंपल फॉर्म में लिख दो, Br2 FeBr3, और यहाँ पे ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड H H, ये सब सारे H सेम रहेंगे, खाली इस H की जगह क्या लिख दिया, Br लिख दिया। एक H की जगह क्या लिख दिया, Br लिख दिया, तो क्या बनेगा, ब्रोमो बेंजीन, और वो H और ये Br कंबाइन होती है, यहाँ पे क्या प्रोड्यूस करेगा, HBr प्रोड्यूस करेगा। तो आप ऐसे लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो। अभी दूसरा वाला सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करेंगे हम लोग, दैट इज nitration. The next reaction was nitration. What is nitration? It is a substitution reaction in which hydrogen atom of benzene ring is replaced by nitro group. What is nitration? It is also a substitution reaction. It is also a substitution reaction in which hydrogen atom of the benzene ring is replaced by which group? Nitro group. हाइड्रोजन एटम ऑफ द बेंजीन रिंग इज रिप्लेस बाय नाइट्रो ग्रुप। तो कैसे रिएक्शन होगा, देखो यहाँ पे, when benzene is heated with a mixture of concentrated nitric acid and concentrated sulfuric acid and concentrated nitric acid and concentrated sulfuric acid together are called as a nitrating mixture, are called as a nitrating mixture at about
313 Kelvin, 233 Kelvin. It gives नाइट्रोबेंजीन. देखो यहाँ पे हमें क्या करना है, हाइड्रोजन एटम के जगह सब्स्टिट्यूट करना है. क्या सब्स्टिट्यूट करना है, नाइट्रो ग्रुप. हाइड्रोजन के जगह हमें क्या सब्स्टिट्यूट करना है, नाइट्रो ग्रुप करना है. नाइट्रो ग्रुप हमें कहाँ से मिलेगा, when benzene is heated with what, concentrated nitric acid and concentrated sulfuric acid, that is nitrating mixture, हमें मिलेगा नाइट्रोबेंजीन. हमें क्या मिलेगा, नाइट्रोबेंजीन. रिएक्शन लिख देते हैं. देखो बेंजीन रिंग with alternate double bond, benzene. Now what is formula for nitric acid? नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला क्या है, HNO3, लेकिन उस हम लोग ऐसे लिखेंगे OHNO2 लिखेंगे. देखो HNO3, HNO1 and 2 3 सेम फॉर्मूला. HNO3 इज नाइट्रिक एसिड. उसे कैसे लिखना है, OHNO2. तो यहाँ पे मैं लिखूंगा OHNO2 concentrated nitric acid. Okay, in the presence of concentrated sulfuric acid and on heating. Benzene heated with concentrated nitric acid in the presence of concentrated sulfuric acid. और यहाँ पे का सब्स्टिट्यूशन होगा, तो यहाँ पे H है, यहाँ पे एक H है, H यहाँ पे चला जाएगा, तो यहाँ से H निकल जाएगा. यहाँ पे क्या आएगा प्रोडक्ट, ऑल बॉन्ड्स आर सेम, खाली यहाँ पे आएगा NO2, मतलब H था, H निकल गया, और H निकला हुआ किसके साथ कंबाइन होगा, OH के साथ. तो यहाँ पे क्या मिला, HOH विल फॉर्म H2, और ये जो हमारा प्रोडक्ट मिलेगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, नाइट्रो बेंजीन. इसे हम लोग बोलेंगे नाइट्रो बेंजीन. करेक्ट. यहाँ पे क्या था, और यहाँ पे हाइड्रोजन था. बेंजीन रिंग में हर एक कॉर्नर में क्या होता है, हाइड्रोजन. बेंजीन रिंग में हर एक कॉर्नर में क्या होता है, अगर हम ऐसा लिखेंगे बेंजीन रिंग विथ ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड, तो हर एक कॉर्नर पे क्या रहेगा, हाइड्रोजन रहेगा. उसका कौन रिएक्ट करेगा, OH NO2 रिएक्ट करेगा. कंडीशन रिमेन सेम, और यहाँ पे NO2 ग्रुप इधर चला जाएगा H को, तो यहाँ से H को सब्स्टिट्यूट करेगा, तो H इज सब्स्टिट्यूटेड. H इज सब्स्टिट्यूटेड बाय विच ग्रुप, NO2 ग्रुप. तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, बेंजीन रिंग विथ ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड, यहाँ पे आएगा NO2 और बाकी सारे H सेम. और ये H और ये OH कंबाइन करके क्या मिलेगा हमें, वाटर. ये हमारा, हम दोनों में से कोई भी एक फॉर्म में इक्वेशन लिखो, नाइट्रो बेंजीन. तो ये हमारा रिएक्शन है नाइट्रो बेंजीन. ये इजी है लर्न करने के. नाइट्रो बेंजीन. अब ऐसे देखो, यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं बताया है, और यहाँ पे हाइड्रोजन बताएंगे, तो मैं क्या मालूम होना चाहिए कि नाइट्रो ग्रुप यहाँ पे किससे रिप्लेस करेगा, हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा. नाइट्रो ग्रुप यहाँ से हाइड्रोजन को क्या करेगा, रिप्लेस करेगा. करेक्ट. नाइट्रो ग्रुप हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा, तो यहाँ पे NO2 आएगा, और H कंबाइन विद द OH, और क्या मिलेगा, H2. तो यहाँ पे क्लियरली पता चल रहा है, NO2 यहाँ पे चला जाएगा, तो H के जगह कौन आ गया, NO2 आ गया, एंड H एंड OH कंबाइन होकर क्या मिलेगा, वाटर. ये हमारा कौन सा रिएक्शन है, नाइट्रेशन. नाइट्रेशन के बाद नेक्स्ट इज सी सल्फोनेशन. सल्फोनेशन, व्हाट इज सल्फोनेशन, एक मिनट. What is sulfonation?
अगेन इट इज ऑल्सो अ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. ये भी हमारा कौन सा रिएक्शन है? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, इन विच हाइड्रोजन एटम ऑफ बेंजीन रिंग इज रिप्लेस बाय विच ग्रुप? सल्फोनिक. यहाँ पे भी हमें क्या करना है? सब्स्टिट्यूशन करना है. यहाँ पे भी हमें क्या करना है? सब्स्टिट्यूशन करना है. कैसे? हाइड्रोजन एटम ऑफ द बेंजीन रिंग इज रिप्लेस बाय विच ग्रुप? सल्फोनिक ग्रुप. हाइड्रोजन एटम ऑफ द बेंजीन रिंग इज रिप्लेस बाय सल्फोनिक ग्रुप SO3H. करेक्ट. तो कैसे लिख करोगे? बेंजीन इज हीटेड विथ फ्यूमिंग मतलब कॉन्सेंट्रेटेड. बेंजीन इज हीटेड विथ द फ्यूमिंग. फ्यूमिंग मतलब concentrated sulfuric acid, and concentrated sulfuric acid is called as the ODM. तो यहाँ पे हमें बेंजीन को हीट करना है. किसका हीट करना है? बेंजीन को हीट करना है concentrated sulfuric acid के साथ. At what temperature? 373 Kelvin, and it gives you what? Benzene sulfonic acid. So when benzene is heated with the fuming sulfuric acid, मतलब okay, at 373 Kelvin, it gives what? Benzene sulfonic acid. और हमें क्या मिलेगा? Benzene sulfonic acid मिलेगा. ओके. कैसे देखे प्रोडक्ट? देखो रिएक्शन देखते हैं हम लोग. राइट, ओनली वन रिएक्शन. ये हमारा बेंजीन है विथ ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड. बेंजीन. अभी सल्फ्यूरिक एसिड. व्हाट इज सल्फ्यूरिक एसिड फॉर्मूला? H2SO4. H2SO4 हम कैसे लिखेंगे? OH SO3H. देखो H2 H2 S1 S1 O4 1 + 3. ये हमारा सल्फ्यूरिक एसिड. H2SO4 को कैसे लिखोगे? HOSO3H लिखोगे. तो यहाँ पे आएगा HOSO3H. ये हमारा कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड. ओके. और ये हमारा यहाँ पे SO3H जो ग्रुप है, दिस ग्रुप इज कॉल्ड एज अ सल्फोनिक एसिड ग्रुप. इट इज कॉल्ड एज अ सल्फोनिक एसिड ग्रुप. अब यहाँ पे मालूम है रिंग में यहाँ पे कॉर्नर पे क्या रहेगा? H रहेगा. तो SO3H यहाँ पे चला जाएगा और यहाँ से किसको रिप्लेस करेगा? H को रिप्लेस करेगा. And then you are using reaction in the presence of fuming. Fuming मतलब concentrated sulfuric acid at 373 Kelvin. और यहाँ पे SO3 यहाँ पे चला जाएगा तो यहाँ पे क्या आएगा? बेंजीन रिंग. बेंजीन. और यहाँ पे कौन सा H रिप्लेस होगा? H की जगह क्या आएगा? SO3H. और यहाँ से निकला हुआ H कंबाइन होगा OH के साथ तो क्या मिलेगा? वाटर. मतलब SO3H group is replacing the hydrogen atom of the benzene ring. SO3H group is replacing the hydrogen atom of the benzene ring, and this compound is called as benzene sulfonic acid. This is called as a benzene sulfonic acid. अब ऐसे लिख सकते हैं. करेक्ट. और अगर आपको अदर वे लिखना है तो कैसे लिखोगे? बेंजीन with alternate double bond. At every corner write down 1 hydrogen atom. सल्फ्यूरिक एसिड कैसे लिखना है? OH SO3H. ये हमारा बेंजीन है. यहाँ पे क्या ऐड किया है? सल्फ्यूरिक एसिड. व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड? H2SO4. बट H2SO4 को कैसे लिखना है? OH SO3H लिखना है. तो यहाँ से SO3H यहाँ पे चला जाएगा, H को रिप्लेस कर देगा. बॉन्ड सारे वही रहेंगे. यहाँ पे क्या आएगा? SO3H आ जाएगा और ये H सेम रहेगा और ये H कंबाइन करेगा OH के साथ और यहाँ पे क्या मिलेगा? वाटर. और इसे हम लोग क्या बोलेंगे?
benzene sulfonic acid. तो ये हमारा मेन रिएक्शन. What is benzene sulfonation reaction? Hydrogen atom of the benzene ring. Hydrogen atom of the benzene ring is replaced by which group? SO3H, and SO3H group is called as which group? Sulfonic group. It is called as a sulfonic group. So hydrogen atom of the benzene is replaced by the sulfonic group, and we get here benzene sulfonic acid. We get here benzene sulfonic acid. Okay. इसमें लास्ट पार्ट एक बचा हुआ है. नेक्स्ट सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कौन सा है? देखो, Friedel-Crafts. Friedel-Crafts is the name of the person. Friedel-Crafts alkylation reaction. Friedel-Crafts alkylation reaction. What is the reaction? The reaction in which hydrogen atom of the benzene ring. यहाँ पे भी हमें हाइड्रोजन रिमूव करना है. Hydrogen atom of the benzene ring is replaced by alkyl group. Hydrogen atom of the benzene ring is replaced by alkyl group in the presence of anhydrous AlCl. Anhydrous AlCl3, and this reaction was discovered by which person? Friedel-Crafts, and therefore it is called as a Friedel-Crafts alkylation reaction. So what is the alkylation reaction? Hydrogen atom of the benzene ring is replaced by alkyl group, and since hydrogen atom of the benzene ring is replaced by alkyl group, it is called as a Friedel-Crafts alkylation reaction. It is called as the Friedel-Crafts alkylation reaction. I will write down the example. अब यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग? बेंजीन विद ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड. अभी अंडरस्टूड है कि यहाँ पे हर जगह हाइड्रोजन रहेगा, हर एक कॉर्नर पे क्या क्या रहेगा? हाइड्रोजन रहेगा. बेंजीन treated with the alkyl halide. Treated with the alkyl halide. Alkyl halide कौन सा? That is, हमें कौन सा alkyl halide लेना है यहाँ पे? मिथाइल क्लोराइड, CH3Cl. Treated with the alkyl halide, that is methyl chloride. Methyl chloride in the presence of anhydrous aluminum chloride. Anhydrous aluminum chloride. और यहाँ पे क्या होगा? अभी ये मिथाइल ग्रुप यहाँ पे जाके किससे रिप्लेस करेगा? हाइड्रोजन. बस हमें मालूम है बेंजीन रिंग में हर कॉर्नर पे क्या रहेगा? हाइड्रोजन रहेगा. बेंजीन रिंग में एवरी कॉर्नर पे क्या रहेगा? हाइड्रोजन रहेगा. तो वन ऑफ द हाइड्रोजन इज रिप्लेस बाय विच ग्रुप? मिथाइल ग्रुप. तो यहाँ पे क्या मिलेगा प्रोडक्ट? फिर बेंजीन रिंग with alternate double bond, and one of the hydrogen is replaced by which group? Methyl. Okay. और यहाँ से निकला हुआ हाइड्रोजन किसके साथ कंबाइन होगा? Cl के साथ. तो क्या बनेगा? HCl. और ये जो हमारा कंपाउंड है उसका नाम क्या रहेगा? मिथाइल बेंजीन. यहाँ पे क्या बनेगा? मिथाइल बेंजीन, and methyl benzene is called as a toluene. Methyl benzene is called as a toluene. यहाँ पे क्या हुआ देखो? When benzene is treated with the alkyl halide, कौन सा alkyl halide लिया हुआ है? मिथाइल क्लोराइड. In presence of anhydrous aluminum chloride. ये anhydrous aluminum chloride है. In presence of anhydrous aluminum chloride हमें क्या मिलेगा? toluene. What is the reaction? Hydrogen atom of the benzene ring is replaced by what? Methyl group, and that's why it is called as the Friedel-Crafts. Friedel-Crafts is the name of the person. Friedel-Crafts alkylation reaction. देखो क्या concept था? Concept क्या था here? The reaction in which hydrogen atom of the benzene ring, hydrogen atom of the benzene ring is replaced by an alkyl group. Hydrogen atom of the benzene ring is replaced by an alkyl group in presence of
anhydrous AlCl3, so it is called as the Friedel-Crafts alkylation reaction. तो यहाँ पे सेम हो रहा है, हाइड्रोजन एटम रिप्लेस बाय मिथाइल ग्रुप, तो हमें क्या मिल रहा है, मिथाइल बेंजीन इन दी प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस AlCl3. तो ये हमारा कौन सा रिएक्शन हुआ, Friedel-Crafts alkylation reaction. Friedel-Crafts alkylation reaction. And last type of the reaction is combustion. हम लोगों ने addition reaction देखे, हम लोगों ने substitution reaction देखे, and the last reaction is what, combustion. What is combustion reaction? When benzene is heated in air, it burns with sooty flame, forming carbon dioxide and water. अगर हम बेंजीन को बर्न करेंगे, when benzene is heated in the air, when benzene is heated in the air, it burns with the sooty flame, forming carbon dioxide and water. मतलब कैसे, benzene C6H6 is the benzene combined with oxygen, तो बर्न हो गए बेंजीन, कार्बन बर्न हो गए, क्या प्रोड्यूस करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर बर्न हो गए, क्या प्रोड्यूस करेगा, H2. So benzene when react with the oxygen, benzene when react with the oxygen हमें क्या मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. कार्बन कितने यहाँ पे 6 है, तो कार्बन यहाँ पे 6 है, हाइड्रोजन यहाँ पे 6 है, तो यहाँ पे भी 3 to the 6 है. ये हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, ये हमारा वाटर, 6 कार्बन 6 कार्बन, 6 हाइड्रोजन 6 हाइड्रोजन, how many O, 6 2s are 12, 6 2s are 12, 12 plus 3, 12 plus 3 15, 15 O, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 15/2. तो ये हमारा कंबशन. सिंपल क्या बोलना है, बेंजीन व्हेन हीटेड इन द एयर, benzene when heated in the air, it burns with the sooty flame forming carbon dioxide and water. मतलब बेंजीन को अगर एयर के साथ बर्न करोगे तो हमें क्या मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मिलेगा. ओके, ये कंबशन रिएक्शन है. यहाँ पे हमारा एरोमेटिक कंपाउंड, एरोमेटिक मतलब हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन का एरोमेटिक पार्ट कंप्लीट हुआ. और आज हम लोगों ने 3 टाइप के रिएक्शंस देखे. एडिशन रिएक्शन, उसके अंदर 2 रिएक्शन थे, एडिशन ऑफ क्लोरीन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन. उसके बाद हम लोगों ने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखा, वहाँ पे हैलोजनेशन देखा, नाइट्रेशन देखा, सल्फोनेशन देखा और फ्रेडल-क्राफ्ट देखा. और लास्ट वाला हमारा रिएक्शन कौन सा था, कंबशन. लास्ट वाला रिएक्शन हमारा कौन सा था, कंबशन. ठीक है, तो इससे हमारा हाइड्रोकार्बन चैप्टर कंप्लीट हुआ. रिमेनिंग पार्ट विल डू इट इन द नेक्स्ट चैप्टर, स्टार्टिंग द नेक्स्ट लेक्चर, न्यू चैप्टर. ओके, yes, so we'll stop it over here. Thank you.